Chapter number 5, House Property, Test Your Knowledge Questions. Question number 1. People Housing Limited is engaged in the business of constructing residential and commercial properties. One of the building properties was included in the closing stock in the balance sheet. The said building was let out for a monthly rent as suitable buyers could not be found. All other buildings had been sold by the company. Examine with reasons whether the income by way of rent from the unsold property is assessable as income from business or income from house property. How would the monthly rent be taxed if the main objective of the company was to hold properties and income by letting out these properties? अगर मेन ऑब्जेक्टिव होता तो बिजनेस में डाल देते, नहीं तो हाउस प्रॉपर्टी में डाल देंगे. बट वैसे तो ये स्टॉक है यार, क्लोजिंग स्टॉक है. इसका मेन बिजनेस ही घर बेचने का है. तो अगर घर बेचता तो बिजनेस में जाती, हाउस प्रॉपर्टी में तो जाती नहीं. बट इसने होल्ड किया इन्वेस्टमेंट को और उस पर अब उसको रेंट मिल रहा है. अंडर सेक्शन 22 द चार्जिंग सेक्शन, अंडर सेक्शन 22 जो हाउस प्रॉपर्टी का चार्जिंग सेक्शन है, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, द ओनली एक्सेप्शन प्रोवाइडेड इज द इनकम डिराइव्ड फ्रॉम प्रॉपर्टी यूज्ड और ऑक्यूपाइड बाय द असेसी फॉर हिज ओन बिजनेस. सिर्फ एक एक्सेप्शन है उसमें कि अगर आपकी जो खुद की प्रॉपर्टी है उसको आप यूज़ कर रहे हो खुद के बिजनेस के लिए. इनकम डिराइव्ड फ्रॉम प्रॉपर्टी यूज्ड और ऑक्यूपाइड बाय द असेसी for his own business. Therefore, income derived from letting out of house property will be a taxable income under the head income from house property, even if the property is held by the assessee as stock in trade of his business. As per section 23, subsection 5, the annual value of the house property held as stock in trade is taken to be nil for a period of 2 years from the end of the financial year in which the certificate of completion was obtained from the competent authority. If such property is not actually let out during the said period, it implies that the income from house property held as stock in trade beyond the said period of 2 years or let out during the whole or any part of the previous year would be taxable under the head income from house property. Thus, if the assessee is engaged in the business of construction and selling of house property, the monthly rent from letting out of unsold inventory, being in the nature of house property, would be taxable under section 22, that is income from house property. The provisions for non-chargeability of annual value of property held as stock in trade for a period of 2 years where such property is not let out are contained in section 23, which falls under the head income from house property. Consequently, annual value of such property would become taxable under the same head of income where such property is let out at any point of time or in any case after the expiry of the said period of 2 years. 2 साल का टाइम दिया जाएगा. In the case of New Delhi Hotels Limited versus ACIT, the Delhi High Court followed its own decision in the case of CIT versus Discovery Estates Private Limited and CIT versus Discovery Holdings Private Limited, wherein it was held in the case of rental income derived from unsold flats, the head income from house property and not under PGBP. The decision is in sync with the intent of the provisions of section 22 and section 23 subsection 5 discussed above. ठीक है. बी पार्ट भी दिया हुआ है. द सुप्रीम कोर्ट इन चेन्नई प्रॉपर्टीज एंड इन्वेस्टमेंट लिमिटेड, ये वाला केस तो बहुत इंपॉर्टेंट है. चेन्नई प्रॉपर्टीज एंड इन्वेस्टमेंट लिमिटेड वर्सेस CIT वाला. In that case, the Supreme Court held that where holding of properties and earning income by letting out these properties is the main objective of the company. यहाँ पे मेन ऑब्जेक्टिव ही कंपनी का ये है कि प्रॉपर्टीज को होल्ड करना है और उसको रेंट पे देना है और रेंट कमाना है. As laid out in its memorandum of association, and the entire income of the company as per its return of income accepted by assessing officer comprises of income from letting out of such properties. Such income would be assessable as profits and gains of business or profession. Further, in case of Rayala Corporation Private Limited versus Assistant Commissioner of Income Tax, the Supreme Court held that since the business of the company is to lease out property and earn rent there from, the rental income earned by the company is chargeable to tax as its business income and not income from house property.
Applying the rationale of the above rulings, if the main objective of the company is to hold the property and earn income by letting out of the properties, the income from letting out properties would be chargeable as tax as PGBP. मेन ऑब्जेक्टिव वो होना चाहिए था, बट इस केस में क्या हुआ था कि इनका मेन ऑब्जेक्टिव तो घर बना के बेचना था, घर बिके नहीं थे, इसीलिए उन्होंने रेंट पे दिया। तो इसीलिए जो रेंट मिलेगा वो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में जाएगा, और सेक्शन 22 में भी लिखा हुआ है साफ साफ, सेक्शन 22 अट्रैक्ट हो जाएगा, उस पर टैक्स लगाएंगे, हाउस प्रॉपर्टी की इनकम बनेगी। भले ही आप बिजनेस में एज एन स्टॉक इन ट्रेड उसको होल्ड कर दो, और ऐसा कोई घर है जो कि स्टॉक इन ट्रेड है, उसका एनुअल वैल्यू जो लिया जाएगा, एनुअल वैल्यू उसका नील लिया जाएगा 2 साल तक, फ्रॉम द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर, जहाँ 2 साल तक, जिस साल मतलब मान लो कि आपको जून 2018 में आपको कंप्लीशन सर्टिफिकेट मिला, फ्रॉम द एंड ऑफ दिस फाइनेंशियल ईयर मतलब कि मार्च 2019 से 2 साल गिनेंगे, तो अप्रैल 19 से मार्च 20 और अप्रैल 20 से मार्च 21 तक, 2 साल तक इसका जो एनुअल वैल्यू रहेगा वो नील रहेगा। इफ सच प्रॉपर्टी इज नॉट एक्चुअली लेट आउट ड्यूरिंग द सेट पीरियड, और अगर उस टाइम पे एक्चुअली लेट आउट नहीं हुआ, इट इम्प्लाइज दैट द इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी हेल्ड एज स्टॉक इन ट्रेड, तो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी लेंगे बियॉन्ड द सेट पीरियड ऑफ 2 years और लेट आउट ड्यूरिंग द होल और एनी पार्ट ऑफ द ईयर वुड बी टैक्सेबल अंडर इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में ही जाएगा तो भी। Thus, if the assessee is engaged in the business of construction or selling of house property, monthly rent from letting out of such unsold inventory being in the nature of house property would be taxable under section 22. तो section 22 में ही charge होगा। The provisions of or non-chargeability of annual value of property held as stock in trade for a period of 2 years, property is not let out, are contained in section 23. ऐसी प्रॉपर्टी जो लेट आउट नहीं करी और प्रोविजन है कि नॉन चार्जेबिलिटी ऑफ एनुअल वैल्यू, उसका जो एनुअल वैल्यू है वो चार्ज नहीं होगा for the period of 2 years where such property is not let out as contained in section 23। वो रेंट कैलकुलेट करने के लिए 3 चीज़ें रहती हैं ना, उसके लिए बोला है। क्वेश्चन नंबर 2 is a Hindu undivided family owns a property which has been let out to a firm carrying on business. The family is a partner of the firm through its karta. No rent has been charged by the HUF from the firm for use of the premises by the firm. The assessing officer, however, has taxed the family on the notional income from property based on municipal valuations. Is this decision justified? Under section 22, the annual value of property is chargeable to tax under the head income from house property। जो annual value होती है प्रॉपर्टी की वो अंडर सेक्शन 22 में इट इज चार्जेबल एज इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, मतलब उसके हिसाब से आप रेंट निकाल लोगे। ऊपर भी यही बोला था, इन द हैंड्स ऑफ द ओनर, और ऊपर क्या बोला था कि 2 साल तक नील रहेगी अगर हाउस प्रॉपर्टी एज अ स्टॉक इन ट्रेड है, और उसका वैल्यू नील ले लेंगे, एनुअल वैल्यू है 2 साल तक। However, this section specifically excludes property occupied for the purpose of own business, but own business के लिए अगर आप ऑक्यूपाई कर रहे हो ऐसी प्रॉपर्टी को, तो दैट इज एक्सक्लूडेड फ्रॉम दिस सेक्शन 22। बिजनेस और प्रोफेशन ऑफ द एसएससी, द प्रॉफिट्स ऑफ विच आर चार्जेबल टू इनकम टैक्स, जिनका प्रॉफिट इनकम टैक्स में चार्ज होगा। इन सीआईटी वर्सेस श्री चंपालाल जीवराज, it was observed that where the karta of the HUF is a partner in the firm in his representative capacity and the firm occupied a portion of the house belonging to the HUF, the benefit of exclusion under section 22 was available to the HUF. Hence, the income from the said property shall not be chargeable to tax under the head income from house property. Therefore, in this case, the action of assessing officer is not correct. इस केस में असेसिंग ऑफिसर नहीं लगा सकता क्योंकि वो अपने ही बिजनेस या प्रोफेशन के लिए यूज कर रहा है, और नॉट दैट पार्टनर हु इज अ कर्ता ऑफ द एचयूएफ इज इन वर्किंग इन दैट पार्टनरशिप फॉर्म इन रिप्रेजेंटेटिव कैपेसिटी। Question number 3. In the following cases, examine under which head of income the receipt would be assessed. Anirudh let out his property to Abhinav. Abhinav sublets it. How is subletting receipt to be assessed in the hands of Abhinav? House property. सबलेटिंग रिसीट्स, अच्छा हाउस प्रॉपर्टी नहीं, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, क्योंकि बिजनेस भी नहीं है और हाउस प्रॉपर्टी उसकी खुद की भी नहीं है, तो इसीलिए इट इज़ इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज और एज प्रॉफिट और पीजीबीपी। वैसे आईएफओएस में ही डालना चाहिए,
पीजीबीपी में तब भी नहीं डालना चाहिए. In the hands of Mr. Abhinav, depending upon the other facts and circumstances of this case, it is not assessable as income from house property. House property में तो जाएगा ही नहीं. Since one of the conditions for assessing an income under the head is that the assessee should be the owner of the property. क्योंकि हाउस प्रॉपर्टी में एक ये होता है कि इनकम जो आपको हाउस प्रॉपर्टी से हो रही है that should have your ownership in that house property. Since one of the conditions for assessing an income under this head is that the assessee should be the owner of the property, that is owner of the building and or the land appertaining thereto. In this case, since Abhinav is not the owner of the house property, subletting receipts cannot be assessed under the income from house property, under the head income from house property. Therefore, it shall be assessed either under income from other sources or from profit and gain from business or profession, as the case may be. Second part is Anish has built a house on a leasehold land. He has let out the above property and has considered the rent from such property under the head income from other sources and deducted expenses on repairs, security charges, insurance and collection charges in all amounting to 50% of receipts. क्या किया इसने? एक घर बनाया लीज होल्ड लैंड पे और उसको किराए पे दे दिया और जो रेंट मिला उसको उसने IFOS में डाल दिया और जो भी एक्सपेंसेस थे रिपेयर सिक्योरिटी चार्जेस इंश्योरेंस के जो कि अप्रॉक्स 50% थे उसको डिडक्ट कर दिया इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में से. मतलब इनका अलग ही दिमाग चल रहा है लोगों का कि हम ऐसा कर लेते हैं. बट ऐसा थोड़ी होता है भाई. लीज होल्ड लैंड पे भी आपने घर बनाया है ना. लीज होल्ड लैंड मतलब आपके पास जब तक लीज है तब तक आपके पास राइट है ना इस घर का कि आप बेच भी सकते हो. उसका ओनरशिप है आपके पास तो इट विल बी टैक्सेबल अंडर income from house property. Since Anish is the owner of the property building, in this case, the receipt would be assessable as income from house property. The ownership of land is not a prerequisite for assessment of income under the head. 30% of net annual value would be allowed as deduction under section 24. Section 24 ए का आपको डिडक्शन मिल जाएगा, स्टैंडर्ड डिडक्शन 30% का. बाकी जो बची हुई इनकम होगी वो पूरी टैक्सेबल हो जाएगी आई वो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में. क्वेश्चन नंबर 4. राजेश owns a house in Hyderabad during the previous year 2021. 3/4 of the portion of the house was self-occupied and 1/4 of the portion was let out for residential purpose at a rent of 12,000 rupees per month. The tenant vacated the property on February 28th, 21. The property was vacant during the March 21. Rent for the month of January and February could not be realized in spite of the owner's efforts. All the conditions prescribed under Rule 4 are satisfied. Municipal value of the property is 4 lakh per annum. Fair rent is 4 lakh 40,000 and standard rent is 4 lakh 80,000. He paid municipal taxes of 10% of the municipal value during the year. A loan of 30 lakh was taken by him during the year 2011 for acquiring the property. Interest on loan paid during the previous year 2021 was 1 lakh 48,000. Compute Rajesh income from house property for the assessment year 21-22. परफेक्ट क्वेश्चन है हाउस प्रॉपर्टी के लिए. परफेक्ट हर चीज़ है इसमें. इसमें क्या हुआ कि एक हाउस है उसका 3/4 पोर्शन जो है इन्होंने सेल्फ ऑक्यूपाई करके रखा है. 1/4 पोर्शन जो है वो रेंट पे दे के रखा है. एक ही हाउस प्रॉपर्टी है, रेसिडेंशियल है और ठीक है. तो रेंट था जनवरी फरवरी का रेंट नहीं मिला इनको. तो रेंट रिसीव्ड इज 12,000 रुपये पर मंथ पे रेंट दिया था, 10 महीने का ही मिला. तो 1,20,000 रुपये का रेंट टोटल रिसीव किया इन लोगों ने. एंड म्यूनसिपल वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी, अब अगर डीम्ड रेंट निकालो आप, इसमें दिया हुआ है हमें म्यूनसिपल वैल्यू दिया हुआ है प्रॉपर्टी का 4 लाख रुपए. फेयर रेंट दिया हुआ है 4,40,000 रुपये. स्टैंडर्ड रेंट दिया हुआ है 4,80,000 रुपये. तो क्या क्या होता है कि म्यूनसिपल वैल्यू और फेयर वैल्यू विच एवर इज हायर सब्जेक्ट टू स्टैंडर्ड रेंट, राइट. तो इन दोनों में से 4,40,000 इज हायर सब्जेक्ट टू स्टैंडर्ड रेंट, मतलब 4,80,000. तो 4,40,000 ये तो 4,40,000 डीम्ड रेंट हो जाएगा. एंड रेंट रिसीव्ड इज 1,20,000 विच एवर इज हायर 4,40,000.
और म्यूनिसिपल टैक्सेस पे किए 10% ऑफ म्यूनिसिपल वैल्यू, 10% ऑफ म्यूनिसिपल वैल्यू इज़ 40,000, 40,000 का ये हो जाएगा तो 4 लाख रुपए की हाउस प्रॉपर्टी इनकम। इस पे 30% स्टैंडर्ड रेंट का डिडक्शन, 4 3 से 12, 1,20,000 बचेगा, 2,80,000 रुपये। और उसके बाद रेंट पे वो जो इंटरेस्ट लिया हुआ था, एक्वायरिंग द प्रॉपर्टी इंटरेस्ट ऑन लोन पेड ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर इज़ 1,48,000, तो 2 लाख तक का मिल जाता है तो 148 का इंटरेस्ट मिल जाएगा। तो 2,80,000 माइनस 1,48,000, 1,32,000 की इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी आनी चाहिए। एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड भाई, गलती कर रहे हो आप। रेंट तो सिर्फ 1/4 ही दिया है और आपकी जो म्यूनसिपल वैल्यू वो तो पूरी होगी ना। शिट 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 शिट, फिर से कैलकुलेट करना पड़ेगा। अरे यार जो 4,40,000 है उसका 1/4 पोर्शन इज 1,10,000 यार, 1,10,000। एक्चुअल रेंट रिसीव्ड इज 1,20,000, तो विच एवर इज हायर इज 1,20,000 आपका रेंट इनकम होगा। बाकी अब फिर वो करेंगे म्यूनिसिपल वैल्यू का, म्यूनिसिपल टैक्सेस कितना पे किया आपने, 1,20,000, आपकी इनकम तो यहीं ज़ीरो हो गई। आगे कुछ करने की क्या ज़रूरत है। ओह डेम, लॉस भी कैलकुलेट किया। Alternatively, if as per income tax return unrealized rent is deducted from gross annual value, then gross annual value would be 1,32,000, being higher of expected rent of 1,10,000 and actual rent of 1,32,000। आंसर देखते हैं एक बार क्या कैलकुलेट किया है, मैंने तो बहुत ही गलत इंटरप्रिटेशन कर लिया था इसका। There are two units in the house. Unit 1 is with 3/4 area is used by Rajesh for self-occupation throughout the year and benefit is derived from that unit. Hence, it will be treated as self-occupied and its annual value will be nil. And unit 2 will be with 1/4 area is let out during the previous year and its annual value has been determined as per section 23 subsection 1। इस पे section 23 लग जाएगा, उसके हिसाब से कैलकुलेट करेंगे रेंट वाले पोर्शन को, दैट इज 1/4 पोर्शन। सो कंप्यूटेशन ऑफ इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, सबसे पहले तो यूनिट 1 लेंगे। यूनिट 1 क्या था, सेल्फ ऑक्यूपाइड। सेल्फ ऑक्यूपाइड का एनुअल वैल्यू क्या होगा, नील। सो स्टैंडर्ड डिडक्शन अंडर सेक्शन 24 सबसेक्शन बी 0। अच्छा नहीं, 0 नहीं, एनुअल वैल्यू जो है वो नील है। हम्म, 3,70,000, 3/4 हुआ पार्ट, तो 4 लाख का 3/4। क्वेश्चन में क्या दिया है, 3/4 of the portion is held by him for self-occupied property. So deduction under section 24B. Three-fourth of 1,48,000, 1,48,000 क्या है, 12,000 रुपये रेंट मिलता है, 12,000 का 12 महीने का इज
144। ये एनुअल वैल्यू 148 कहाँ से निकाल लिया भाई? अच्छा 148 उनने 30% निकाला, तो 148 कितने अमाउंट का 30% होता है? 4,93,33333। तो उन्होंने सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी में 1,11,000 का लॉस निकाल दिया। यूनिट 2 की बात करते हैं, विच इज़ लेट आउट। इसमें क्या हुआ कि अपने को सबसे पहले ग्रॉस एनुअल वैल्यू निकालना पड़ेगा। ग्रॉस एनुअल वैल्यू, ग्रॉस एनुअल वैल्यू के लिए सबसे पहले स्टेप 1 है, कंप्यूट करो एक्सपेक्टेड रेंट को। एक्सपेक्टेड रेंट, एक्सपेक्टेड रेंट कैसे निकलेगा? एक्सपेक्टेड रेंट इज़ हाइयर ऑफ म्युनिसिपल वैल्यू एंड फेयर वैल्यू। जो म्युनिसिपल वैल्यू और फेयर रेंट होता है उसका हाइयर, विच इज़ रेस्ट्रिक्टेड टू स्टैंडर्ड रेंट। हाउएवर इन दिस केस स्टैंडर्ड रेंट ऑफ 1,20,000, इसको अगर 1/4 निकालें तो म्युनिसिपल वैल्यू 4 लाख दिया हुआ है, उसका 1/4 इज़ 1 लाख रुपये। फेयर रेंट दिया 440, इसका 1/4 इज़ 1,10,000। और स्टैंडर्ड रेंट 480 दिया हुआ है, इसका 1/4 इज़ 1,20,000। तो विच एवर इज़ हाइयर, 1,10,000 में से 1,10,000 सब्जेक्ट टू स्टैंडर्ड रेंट ऑफ 1,20,000, तो 1,10,000 हो जाएगा वैल्यू। सब्जेक्ट टू स्टैंडर्ड रेंट होता है ना, मतलब स्टैंडर्ड रेंट से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अब इन दोनों में विच एवर इज़ लोअर ले लेते हैं। तो 1,10,000, 1,10,000 इज़ द एक्सपेक्टेड रेंट। Hence, the higher of MV and FR is the expected rent. In this case, it is the fair rent. So, computation of actual rent received. Step 2 में actual rent received. ओ सॉरी 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 सॉरी, मैंने क्या कर दिया था, मैंने 10 महीने का निकाल लिया। 10 महीने का नहीं, वो एक्चुअली 9 महीने का निकलेगा, क्योंकि जनवरी फरवरी मार्च है ना ब्रो। और जनवरी का रेंट नहीं मिला, फरवरी का रेंट नहीं मिला, और मार्च में तो खाली हो गया था। तो एक्चुअल रेंट रिसीव्ड इज 12,000 इंटू 9 मंथ्स। ये गलत कैलकुलेशन किया था मैंने, हाँ। तो यहाँ क्या है, 1,08,000 रुपये इज एक्चुअल रेंट रिसीव्ड and the property was let out for 11 months. However, rent for 2 months, that is January and February, could not be realized as per explanation to section 23 subsection 1. Actual rent should not include any amount of rent which is not capable of being realized. Therefore, actual rent has been computed for 9 months. जिस मंथ का आपको नहीं मिलेगा उसको आप कैलकुलेट नहीं करोगे। अब स्टेप 3 is gross annual value. Gross annual value is higher of expected rent or actual rent received, and actual rent received or receivable. However, as per section 23 subsection 1 clause C, where the let out property is vacant for a part of the year and owing to vacancy, the actual rent is lower than the expected rent. मतलब बिकॉज ऑफ वैकेंसी जो है आपका जो एक्चुअल रेंट है वो लोअर हो रहा है एक्सपेक्टेड रेंट से, देन द एक्चुअल रेंट रिसीव्ड वुड बी द ग्रॉस एनुअल वैल्यू। उस केस में ग्रॉस एनुअल वैल्यू क्या होगा, जो आपका एक्चुअल रेंट होगा वही हो जाएगा, उसमें हायर नहीं लेंगे फिर। Then the actual rent received would be the gross annual value of the property. In this case, actual rent is lower than expected rent owing to vacancy. Vacancy की वजह से है ना। Since had the property not been vacant in March 2021, तो टोटल रेंट आता उनके पास 144 का। द एक्चुअल रेंट वुड हैव बीन रिसीव्ड इज, मतलब 12,000 और मिल जाते जनवरी में, उसको नहीं जोड़ा जो फरवरी का मिला था।
तो अपन यहाँ आते हैं कि ओइंग टू वैकेंसी अगर एक्चुअल रेंट रिसीव्ड आपका कम हो जाता है एक्सपेक्टेड रेंट से तो उसमें विच एवर इज हायर नहीं लेंगे, और जो एक्चुअल रेंट रिसीव हुआ है दैट विल बी द ग्रॉस एनुअल वैल्यू। Therefore, in this case, section 23 subsection 1 clause C would apply and the actual rent of rupees 1,08,000 would be the gross annual value since it is lower than expected rent owing to vacancy। अब जो है कैलकुलेशन स्टार्ट होगा। तो ग्रॉस एनुअल वैल्यू इज 1,08,000। म्यूनिसिपल टैक्सेस पेड इज 10% ऑफ म्यूनिसिपल वैल्यू दैट इज 4 lakhs, और उसका 1/4 अपने को डिडक्शन मिलेगा इसमें क्योंकि 1/4 पार्ट इज ओनली लेट आउट। 10,000 रुपये, 10,000 रुपये लेस होगा, बचेगा 98,000। 98,000 इज द नेट एनुअल वैल्यू। नेट एनुअल वैल्यू में से डिडक्शन मिलेगा 30% का अंडर सेक्शन 24 क्लॉज बी। सेक्शन 24 का डिडक्शन 98,000 का 30% इज 29,400। और इंटरेस्ट जो पे किया, इंटरेस्ट पे किया था 1,48,000 का, 1,48,000 का इंटरेस्ट पे किया तो इसका 1/4 पोर्शन मिल जाएगा। 1/4 पोर्शन इज 37,000। सो 98,000 माइनस 29,400 माइनस 37,000, ये हो गया 31,600 इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी लेट आउट यूनिट से। और जो सेल्फ ऑक्यूपाइड था उसका लॉस था 1,11,000। अच्छा, ये इन लोगों ने वो लिया ना, जैसे लेट आउट प्रॉपर्टी एनुअल वैल्यू तो नील है तो आपको इंटरेस्ट का डिडक्शन मिलेगा ना इस पर। इंटरेस्ट अपन ने पे किया था, क्वेश्चन में लिख देना था ना वहाँ पे इंटरेस्ट का डिडक्शन। अच्छा, ये 24B में स्टैंडर्ड, अच्छा सॉरी 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 सर, अब यहाँ ये चीज़ मेरे को अभी याद आई कि सेक्शन 24 में दो डिडक्शन मिलते हैं। पहला है सेक्शन 24 सबसेक्शन ए में स्टैंडर्ड डिडक्शन है 30% का, और सेक्शन 24 सबसेक्शन बी में, क्लॉज बी में, सेक्शन 24 क्लॉज बी में इंटरेस्ट का डिडक्शन है। तो इंटरेस्ट पे किया है यहाँ पे 1,48,000 का, तो इंटरेस्ट ऑन सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी वॉज 1,48,000 इंटू 3/4। सीधा सीधा मैं पता नहीं क्या क्या कैलकुलेट कर रहा था। 3/4 तो 1,11,000 रुपये लॉस आ गया, और यहाँ पे इनकम हुई 31,600 की, तो आपका नेट लॉस हो गया 79,400 का, जो आप कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो। वही आया ना, हाँ ठीक है। और इनने क्या बोला, ऑल्टरनेटिवली इफ एज पर इनकम टैक्स रिटर्न अनरियलाइज रेंट इज डिडक्टेड फ्रॉम ग्रॉस एनुअल वैल्यू। ऐसा भी कर सकते थे कि ग्रॉस एनुअल वैल्यू निकाल लो, उसमें से अनरियलाइज रेंट है उसको डिडक्ट कर दो। सो इट वुड बी 132, मतलब 12 महीने का ये हो जाता, 12 महीना मतलब फेबररी तक ही रेंट पे था तो 11 महीने का रेंट निकालेंगे, इट्स 1,32,000, और अनरियलाइज रेंट 2 महीने का है तो 24,000, 1,08,000 ही बचता है उसमें भी। would be 1,32,000 being higher of expected rent 1,10,000, actual rent of 132, thereafter unrealized rent of 24,000 and municipal taxes of 10,000 would be deducted from gross annual value of 132 to arrive at NAV of 98,000। तो NAV कैसे भी कर लेते, 98 ही आती, ठीक है। सो नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 5। ये क्या है, ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर 2020-21 मिस्टर ए रिसीव्ड अ सम ऑफ 1,80,000 60,000 per annum, क्या है, by way of arrears for the last 3 years as the government department tenant, enhance the rate of rent with retrospective effect, will the sum of 1,80,000 be taxable in the assessment year 21-22? Can it spread over the last 3 years? क्या होगा, 3 साल का 60,000 रुपये एक साल के हिसाब से 1,80,000 रुपये मिला, मतलब 3 साल का अरियर्स था, एक साथ रिसीव हो गया उसको। गवर्नमेंट डिपार्टमेंट एनहांस द रेट ऑफ रेंट विद रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट, क्योंकि अच्छा क्योंकि गवर्नमेंट डिपार्टमेंट ने रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट डाल के रेंट बढ़ा दिया 60,000 रुपये पर एनम से, तो 3 साल से रेंट पे था तो उसको पिछले 3 साल का पैसा मिला 1,80,000 रुपये।
तो अब कब टैक्सेबल होगा? वो इसी साल टैक्सेबल होगा कि पिछले 3 साल में होगा? ऑब्वियसली इसी साल टैक्सेबल होगा, क्योंकि पहले थोड़ी पता था आपको कि रेंट मिलने वाला है 60,000 रुपये बढ़ के। एज पर सेक्शन 25A, यहाँ पे कौन सा सेक्शन लगेगा? सेक्शन 25A। द अरियर्स ऑफ रेंट शॉल बी टैक्सेबल इन द प्रीवियस ईयर इन विच सच अरियर्स आर रिसीव्ड। जिस साल मिलेंगे उसी साल। The assessee shall be allowed deduction under at 30% of such amount received. Further, it is not necessary that the assessee should be the owner of such house property in the previous year in which such arrears are received. अच्छा, और ज़रूरी नहीं है कि जिस साल में पैसा मिला है आपको अरियर्स का, उस साल आपके पास प्रॉपर्टी हो और आप ओनर हो उस प्रॉपर्टी के। एज द अरियर रेंट ऑफ 1,80,000 इज रिसीव्ड इन द प्रीवियस ईयर 2021, the same is taxable in assessment year 21-22. Thus the net sum of 1,26,000, that is 1,80,000 मिला, उसमें से 30% का स्टैंडर्ड डिडक्शन 54,000, सो नेट बचेगा 1,26,000 shall be chargeable to tax under the head income from house property. There is no provision in the income tax enabling the assessee to spread over the arrears of रेंट ओवर द लास्ट 3 ईयर्स। ऐसा कोई प्रोविजन ही नहीं है इनकम टैक्स एक्ट में कि आप स्प्रेड कर सको, जिस साल मिला उस साल आपको टैक्सेबल करना पड़ेगा। कंप्लीट, ये क्वेश्चन भी हो गया, चैप्टर भी हो गया।